Okay, so in the last session हमने coefficient of thermal conductivity ऐसा एक quantity क्या है वो सीखा था. Your textbook says title was given as coefficient of thermal conductivity, but actually जो हमने heat equation लिखा था, heat मतलब how much heat is flowing from one side of the cube to the other side of the cube, that was proportional to area of face of the cube, proportional to difference in temperature, proportional to time for which the heat flows, and inversely proportional to distance between perpendicular distance between two faces. तो ये जो लॉ है, दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, गुड. So we already have seen this. Just a quick revision, then we'll write it down. So each side was x, temperature here was T1 and here was T2, and of course T1 was greater than T2. मतलब हीट इस फेज से इस फेज की तरफ फ्लो होगा, तो द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो Q was proportional to, as I told you, it is proportional to area, it is proportional to difference in temperature, it is proportional to the time for which the heat flows divided by distance. This is law of thermal conductivity. Then जब आप यहाँ से proportionality की साइन हटाते हो तो you write down K, which is called as coefficient of thermal conductivity. फिर K डिफाइन करने के लिए आपने K को छोड़ के राइट हैंड साइड के सारे पैरामीटर को 1 कर दिया था. तो you said कि let's say A is equal to 1 meter square, let's say difference in temperature between two faces is 1 degree Celsius, let's say the time for which the heat flows is 1 second, the distance between the perpendicular distance between two faces is 1 meter, then you say Q equal to K. फिर आप coefficient of thermal conductivity को define कर सकते हो as coefficient of thermal conductivity is defined as the amount of heat amount of heat amount of heat that flows for 1 second through a distance of 1 meter when two opposite faces of cube are maintained at temperature difference of 1 degree Celsius, right? So, and also from this equation you can write down K. So K is equal to Qx by A T1 minus T2 T, एंड ये आपको काम में आएगा टू मेक ऐसा यूनिट और डायमेंशंस. लेट अस टॉक अबाउट ऐसा यूनिट. Q इज हीट मतलब जूल. ये मीटर में है, नीचे मीटर स्क्वायर में है, एक मीटर गया, तो आपको मिलेगा जूल पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस सेकेंड. इसको लिखने के लिए लिखते हैं मीटर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन. तो दिस इज SI unit of thermal conductivity. And as I already told you, जिस सब्सटेंस का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा that will be a good conductor of heat. Then taking that equation again, सिर्फ मैं यहाँ पे Q upon T कर लूंगा, बाकी सब उसी साइड पे रहेगा. I will not shift anything else, I am just shifting T here, and you will have this form, and of course K is here. तो ये जो हीट पर यूनिट टाइम है इसको बोलते हैं हीट फ्लो, दैट इज गिवन बाय पी. पावर भी बोल सकते हो इसको, पावर ही है एक्चुअली ये, राइट. बट देन अगेन जब आप 12th में जाओगे तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन साथ में पढ़ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट साथ में पढ़ना. क्यों? क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो you define current. How do you define current, by the way?
Q अपॉन T। हम एक वायर लेते हैं, वायर पे एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट में से पर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो रहा है उसको बोलते हैं करंट। इसके आगे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे भी वही है, कितना हीट फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, राइट। तो इसको बोलेंगे हीट करंट। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हीट करंट, राइट। तो इसको डिनोट करने के लिए आप H से भी डिनोट कर सकते हो, हीट करंट। ओके, so either you say P or you say H, it's the same thing. So it is heat current basically. Good. Then इसको हम कैलकुलस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, you can write in terms of derivative, क्योंकि यहाँ पे Q है total amount of heat flowing from one side to the opposite side। पर अगर मैंने बोला कि इस साइड से for a distance dx how much is the heat flow, so if you're talking about small distances, so small amount of heat will flow for small time, k a temperature difference will be small, distance will be small, you can put a negative sign। negative sign आपको सिर्फ इतना बताता है that heat is flowing from or heat is flowing in the direction of decrease of temperature। तो क्योंकि in figure you can see T1 was at higher temperature and heat is flowing in the direction of decrease in temperature, इसलिए negative sign use करते हैं हम लोग यहाँ पे। good, then अगेन टू डिफाइन के, सबसे पहले तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, आई नॉट राइट डाउन नेगेटिव साइन। टू डिफाइन के वापस से वही लॉजिक, के डिफाइन करना है तो हम ए की वैल्यू 1 ले लेंगे। हम बोलेंगे हर 1 मीटर में फॉल ऑफ टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज 1 डिग्री। गुड, हर 1 मीटर के बाद 1 डिग्री से टेम्परेचर कम होने वाला है, दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो ये आ जाएगा आपका dq बाई dt इक्वल टू के। फिर आप बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज रेट ऑफ हीट फ्लो, है ना, dq बाई dt इज रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट एट राइट एंगल्स टू द सरफेस। क्यों? क्योंकि सरफेस से राइट एंगल पे हीट जा रहा है ना, हीट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, यहां से। तो सरफेस के साथ इसका एंगल कितना, 90 डिग्री, तो हीट फ्लो इज एट राइट एंगल्स। तो इतना डिटेल नहीं भी लिखा तो डजंट मैटर रियली, बट इट्स ओके। तो दिस इज ऑल दैट वी डिड इन लास्ट सेशन। तो नाउ वी आर सपोज टू पुट डाउन ऑल दिस इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। All right, so we'll need this thing. I'll just get rid of what is not needed. Okay, so तो हम लोग बेसिकली जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करके लिखेंगे इसको। तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी स्टेट्स दैट द हीट Q flowing from one face of a cube to opposite face of a cube is proportional to। तो उसके लिए पहले हमको क्यूब लेना पड़ेगा, तो पहले लिख दो कंसिडर a cube of side length x, right, the opposite faces of cube, the two opposite faces of cube, faces of cube are maintained at, the opposite faces of cube are maintained at different temperatures, T1 and T2 as shown in figure।
T1 is greater than T2. Okay, right? Therefore, what you can say is, thank you. So according to law of thermal conductivity, law of thermal conductivity states that the amount of heat, Q flowing between the two opposite faces, is directly proportional to, or is first proportional to, क्या था proportional to? area A of the face. Second, it is proportional to difference in temperature, T1 minus T2 between the two faces, then it was directly proportional to the time for which heat flows and lastly inversely proportional to the perpendicular distance between the two faces, to the perpendicular distance between the two faces. Right, therefore you can write down Q is proportional to A, T1 minus T2, T by X. Therefore you can write down, if you remove constant of proportionality, you can write down Q is equal to K A T1 minus T2, T1 minus T2 T by X. Therefore, of course, K is equal to Qx upon A, K is equal to Qx upon A T1 minus T2 by T. ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमको ऐसा यूनिट्स बनाना है यहाँ से, that's why. So to define K, if let us say if X is 1 meter, A is 1 meter square, temperature difference is 1 degree Celsius, time for which the heat flows is 1 second, then you will have K equal to Q. Let me call this equation number 1, right? Equation 1, equation 2, right? Therefore, coefficient of thermal conductivity, हाँ वो लिखना रह गया हमने कि where K is called as coefficient of thermal conductivity, तो लिख देंगे यहाँ पे, doesn't matter. So where K is a constant of proportionality called as coefficient
of thermal conductivity. Thermal conductivity. So coefficient of thermal conductivity K is defined as, may be defined as, because we also have an alternate definition for it. So it may be defined as, कैसे define करेंगे अभी from this particular thing? How will you define from this data? बताओ. Tell me how to define this. Yes, those who are offline, I'm expecting, is defined as the amount of, अरे अभी तो बताया मैंने, amount of heat flow, amount of heat flow for 1 second, ठीक है, वो भी ठीक है, from 1 second between, हाँ, from one end to other end बोलने से बेटर है, between the two opposite faces, क्योंकि end नहीं बोल सकते हम लोग को, faces बोलना पड़ेगा, between the two opposite faces of a cube, faces of a cube, which are maintained, they are having temperature difference of 1 degree Celsius, having temperature difference of 1 degree Celsius, and the perpendicular distance between them is 1 meter, and the perpendicular distance between them is 1 meter. 1 meter, ऐसा उसको करते हैं हम लोग. Okay, yes. Then you can write it in terms of calculus form also. So let's write it in terms of calculus form. So how do you write it in terms of calculus form? You can say equation 1 can be written as, Q by T is equal to, क्या था? K A T1 minus T2 upon X, right? इसको आपने बोला था P conduction, right? Where Q by T, which is P conduction, is the rate of flow of heat, which is also called as heat current. और ये हीट करंट आपके बुक में नहीं बताया है, तो यू शुड नो इट इज आल्सो कॉल्ड एज हीट करंट, राइट? SI यूनिट्स ऑफ K, जूल पर मीटर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन. Similarly, SI unit of P conduction is, what is energy per unit time? Power का unit watt, तो it is watt. तो हीट करंट, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, वैसे हीट करंट इज मेजर्ड इन watt, right? So in calculus form, equation 3 can be written as, so in calculus form you can write as dq by dt
dq by dt is equal to Ka with a negative sign. What by what? x. अभी एक ऐसा क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हीट करंट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर ग्रेडियंट एस, मतलब ग्राफिकल क्वेश्चन था in terms of graph. What is temperature gradient here in this equation? dt by dx. What is heat current? dq by d. K is constant, A is constant, मतलब constant. So can you tell me how will this graph look like if I plot this dt by dx and here dq by dt, how will this graph look like? A straight line passing through origin. Very good, right? तो ऐसा क्वेश्चन आया था and you should know that it is just a straight line passing through origin. So heat current is directly proportional to temperature gradient, मतलब good, right? Then negative sign indicates that the heat flows from or in the direction of decrease in temperature, या फिर आप बोल सकते हो flows from higher temperature surface to lower temperature surface in the direction of decrease in temperature, right? Simple है. Again you can say numerically or magnitude wise. When I say numerically or magnitude wise, मतलब negative sign को neglect कर दो. So dq by dt is equal to Ka dt by dx, right? Correct. And then you can say if A is 1 meter square, dt by dx is 1 degree Celsius per meter, then you can say that dq by dt is equal to K. Therefore, thermal coefficient of thermal conductivity may also be defined as coefficient of thermal conductivity may also be defined as the rate of heat flow per unit area per unit temperature gradient at right angle to the side of the cube Okay, so there was no big deal in writing all this. Simple है. So I don't want you to memorize. ऐसा रट्टाफिकेशन not allowed. जो समझा है लिखो, मार्क्स मिल जाते हैं अपने आप. You don't have to worry about marks, right? Because ये तो आपको सिर्फ एग्जाम as far as state board is concerned उतने में लगने वाला है, तो you don't have to worry about these things. Good. तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ. अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो ही अगला कॉन्सेप्ट समझेगा, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस. 7.9.1.3 थर्मल रेजिस्टेंस. अब जैसे आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सीखा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस?
व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? मैंने नहीं सिखाया, आई नो, बट रेजिस्टेंस ये सुना तो होगा कहीं पे। हाँ, V is equal to IR. Good. So I want to know what have you understood by V is equal to IR? So V is directly proportional to current. नहीं. What is the meaning of resistance? You are correct. V is directly proportional to I, and the constant of proportionality is R, which is called as resistance. But what is the meaning of resistance? Resistance helps us to identify whether the metal बहुत हायर लेवल पे जा रहे हो. बेसिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? अपोजिशन टू द करंट. सिंपल. मतलब ऐसा है कि आपके पास एक मेटल है, मेटल में आयन्स है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो दिस आयन्स आर वाइब्रेटिंग. तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को ए एंड से बी एंड जाना है तो इट विल सफर अपोजिशन, बिकॉज जैसे ही वो जाने की कोशिश करेगा तो ये वाइब्रेटिंग आयन बीच में आ जाएगा. कोलिजन, कोलिजन मतलब चेंज इन पाथ. तो दिस collisions, they actually oppose the electron to go from one end to another end. By the way, because we are talking about it, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं. अब हमको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास ये एक रॉड होगा, मेटालिक रॉड है. मेटालिक रॉड में ही कंडक्शन की बात होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री है टू मूव. सबसे पहले तो द थिंग इज, व्हाई शुड एनी इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड? It will not go from one end to other end. There is no reason for this electron to go from A to B. जब तक आप एक्सटर्नल बैटरी नहीं कनेक्ट करते. बैटरी क्यों? क्योंकि जब मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा या सेल कनेक्ट करूंगा, इसको नेगेटिव टर्मिनल लगाऊंगा, इसको पॉजिटिव टर्मिनल लगाऊंगा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल इसको रिपेल करेगा और अपोजिट साइड से पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा. द करंट in the presence of external cell or battery is called as drift current, because the electron is drifting towards positive end. इसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं हम लोग. करेक्ट. और अगर बैटरी नहीं थी तो भी करंट होता है. कैसे? पर एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होता है कि इफ आई टेक एनी क्रॉस सेक्शन, मैंने एक सेक्शन ले लिया रॉड का, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी होगा, देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इन रैंडम मोशन. रैंडम मोशन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में सेक्शन को क्रॉस करके गया, रैंडम मोशन में. और जब हम बोलते हैं देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट देयर आर more than 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स. तो बहुत बड़ा नंबर होता है. मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल बैटरी, जितने लेफ्ट टू राइट एक एरिया को क्रॉस करके गए, उतने ही राइट टू लेफ्ट एक एरिया को क्रॉस करके आएंगे. मतलब ओवरऑल कैंसलेशन, मतलब नेट करंट इज जीरो. तो बिकॉज रैंडम मोशन है, क्यों है? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हो, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी होता है, एनर्जी होता है तो कहीं तो जाएंगे, राइट? तो दैट इज व्हाई, एंड व्हेनेवर देयर इज मोशन ऑफ चार्जेस, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट. आपने बताया था. हाँ, तो फिर ऐसा क्यों कि अगर बैटरी नहीं लगाई तो फिर करंट नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हैं? अरे है, पर कैंसिलेशन, नेट करंट जीरो है, राइट? तो मोमेंट यू अप्लाई बैटरी, फिर all these electrons will start flowing in the same direction. So there is net current. Okay, right? तो नेट करंट कब होता है? जब मैंने बैटरी लगाई. बैटरी लगाई मतलब क्या? हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है. देयर इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड. बैटरी कनेक्ट करना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देना. तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू जस्ट सेड V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बाई आई. दिस V इज एक्चुअली डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. मतलब आप तो लिख देते हो ऐसा, करेक्ट, लेकिन ये एक्चुअली दिस इज V A
माइनस वी बी अपॉन आई। फिर एक एंड होता है जीरो पोटेंशियल पे, दूसरा एंड होता है वी पोटेंशियल पे। फिर आप बोलते हो जैसे भी अदर वे राउंड, तो वी बी माइनस वी ए लिखो। तो आप बोलोगे हाँ वी बी वी है, वी ए जीरो है, अपॉन आई, तो फिर आ गया आपका वी बाय आई। ऐसा क्यों, सीखते जाओ अभी, क्योंकि आगे जाके 12th में लगने ही वाला है पोटेंशियोमीटर। नॉर्मली क्या होता है, मेरे पास अगर एक मेटालिक रॉड है, मैंने इसको अगर 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, और 10 वोल्ट का बैटरी होता है 20 का होगा पता नहीं, आई हैव अ सेल हियर। अभी सेल पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट तो मान लेते हैं 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ओके गुड। मुझे ये बताओ 1.5 वोल्ट कहाँ पे, एट एंड ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी या फिर ई, कहाँ पे 1.5 वोल्ट, बी पे। तो बेसिकली क्या होता है कि ए एंड जीरो पोटेंशियल पे है, बी 1.5 पे है, तो ऐसा इंक्रीजिंग होता है 0.1 0.2। इसलिए जब आप लिखते हो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यू एक्चुअली राइट डिफरेंस इन पोटेंशियल अपॉन करंट। तो यू आर एक्चुअली राइटिंग VB माइनस VA अपॉन I, बट VB इज V एंड VA इज 0, तो इसलिए आप बोलते हो इन शॉर्ट R इज इक्वल टू V बाई I। करेक्ट। अभी इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत थी, जरूरत ये थी कि हमको अगर ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्जेस is electrical resistance, तो resistance to the flow of heat will be thermal resistance। तो जैसे एक कंडक्टर करंट को फ्लो होने से अपोज करता है, वैसे वो हीट को भी अपोज कर सकता है, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे आपने R इक्वल टू वी बाई आई, और V मतलब डेल्टा V, डिफरेंस इन पोटेंशियल लिखा है, करेक्ट। हमारे पास डिफरेंस इन टेम्परेचर था इक्वेशन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास, वहां पे हीट करंट था। तो अभी थर्मल रेजिस्टेंस का इक्वेशन अगर आपको बनाना है तो बहुत सिंपल सा काम करना पड़ेगा हमको। हम वो इक्वेशन उठाएंगे, दिस इक्वेशन आई विल टेक फ्रॉम हियर, उप्स, ओके राइट। अब ये जो P कंडक्शन लिखा है, मैं इसको P कंडक्शन या इसको मैं H बोल रहा हूँ, बिकॉज आई लाइक इट कॉलिंग H, हीट करंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट आई वैसे हीट करंट H, राइट। और फिर मुझे ये नहीं लिखना, आई डोंट लाइक इट, तो हटा देते हैं यहाँ से। कैसे डिफाइन किया हमने हीट करंट, डिफरेंस इन टेम्परेचर, सॉरी थर्मल रेजिस्टेंस डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन, हाउ डिड यू डिफाइन थर्मल रेजिस्टेंस, अभी तो डिफाइन किया। व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आपने ही बताया मुझे। B इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाई I, फिर ये डेल्टा V बाई I इज रेजिस्टेंस, करेक्ट। डेल्टा V बाई I इज रेजिस्टेंस, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या बताया, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, तो थर्मल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, डिफरेंस इन टेम्परेचर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, हीट करंट। तो अभी ये जो इक्वेशन है आपके पास ऊपर, उसमें मुझे इफ आई वांट टू हैव थर्मल रेजिस्टेंस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, T1 माइनस T2 बाई H, मतलब सिर्फ इस H को यहाँ पे डिवाइड कर दिया और X अपॉन KA को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दिया, करेक्ट, क्लियर, 100%। तो ये मिल गया आपका थर्मल रेजिस्टेंस, इसको बोल देंगे इट इज थर्मल रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज सो डिफिकल्ट हियर, ये थर्मल रेजिस्टेंस आ गया आपका, करेक्ट, इजी, गुड। देन यूनिट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था,
वोल्ट पर हाँ, वोल्ट पर एम्पियर एम्पियर, उसको आप बोलते हो ओहम। हाँ, यहाँ पे x मतलब डिस्टेंस है, a मतलब डिस्टेंस स्क्वायर है, राइट। तो ये आ गया 1/मीटर। k का अभी आपने ही देखा पता था, नहीं नहीं नहीं, यूनिट, जूल पर मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस है केल्विन। तो ये आ गया आपका सेकेंड डिग्री सेल्सियस पर जूल। गुड। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, तो हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, इवन दो इट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट हम लोग देखेंगे। वाई? जस्ट टू कंपेयर, याद रहने के लिए। डू यू नो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, इफ आई हैव अ रॉड जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एल है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड दैट्स इट। नहीं, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो। वेट वेट, आई डोंट वांट यू टू रश, हमारी ट्रेन नहीं छूटने वाली, आराम से। रेजिस्टेंस क्यों आया था? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन्स, करेक्ट। लॉजिकली सोचो, मेरे पास ये एरिया है अब, राइट। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं इस रॉड का एरिया बढ़ा देता हूं। एरिया बढ़ाना, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है, आयोन्स है, इसको शिफ्ट करना। आयोन्स में डिस्टेंस बढ़ना, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होना। क्लियर? नहीं समझा तो मैं वापस बताता हूं, जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार बताऊंगा, बट समझना जरूरी है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। हमारे पास एक रॉड था, रॉड में आयोन्स है, दीज आर आयोन्स, और एक बेचारा इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहा है बट नॉट एबल टू गो बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स, इसलिए है रेजिस्टेंस। अगर मुझे रेजिस्टेंस कम करना है, मतलब मुझे कोलिजन्स कम करवाने हैं, मतलब मुझे आयोन्स का डिस्टेंस बढ़ाना है, मतलब मुझे एरिया बढ़ाना है, तो एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, बराबर। अब जितना लंबा मैं रॉड लेने वाला हूं, जितना ज्यादा लेंथ है उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, राइट। मतलब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फिर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको आप बोलते हो रेजिस्टिविटी, रो एल बाय ए। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, करेक्ट। तो जैसे थर्मल कंडक्टिविटी आपको बताता है कि कौन सा मटेरियल गुड थर्मल कंडक्टर है, वैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताता है कौन सा मटेरियल गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज यू सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हाँ, तो फिर थर्मल रेजिस्टेंस में भी तो वही है, एक्स मतलब क्या था? लेंथ ही तो था अपॉन एरिया। हाँ, तो अभी फिर ये दो इक्वेशन याद रखने की जरूरत क्या है? यू कैन से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज एल अपॉन सिग्मा ए, यहाँ पे बोलोगे एल अपॉन के ए, वेयर के इज थर्मल कंडक्टिविटी एंड सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अभी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स को x बोलो या l बोलो, क्या फर्क पड़ता है? तो आई कैन से ये जो डिस्टेंस लिया था मैंने, वो कहाँ गया? ये, इसको मैं l बोल दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। गुड। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट these two have exactly the same form. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब भी सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ हीट, राइट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, थर्मल रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, थर्मल रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। खत्म, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, right? So that's how you can define what is thermal resistance, right? Good.
तो एक क्विक रिकैप, थर्मल रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब ये है, हाउ मच इज द resistance offered by the material of the slab or the rod to the flow of heat. करेगा ना, हमने देखा है बैड कंडक्टर्स, थर्माकोल, तो थर्माकोल का थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा क्योंकि वो बैड कंडक्टर है, मतलब इट इज अ गुड थर्मल रेजिस्टर, है ना। तो हमको ये था कि हाउ डू आई मेक एन इक्वेशन फॉर थर्मल रेजिस्टेंस, तो मुझे पता है H which was Q by T, that was equal to K A T1 minus T2, T नहीं लिखना क्योंकि T हमने ऑलरेडी वहां पे Q by T में लिख दिया था, अपॉन X, X बोलो L बोलो आपके ऊपर है ये, तो मैं लिख दूंगा जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट करंट, so that is X upon Ka. This is called as thermal resistance. Done. So we are done. We will take a very short break and we'll be back for JEE NEET. And this point onwards, I will take in the next session.